Hello and good evening, everyone. Welcome to the Asra Foundation. We are here live on Facebook page of the Asra Foundation. आज हमारे साथ जैसे आपको मालूम है हम हर थर्सडे को 5 बजे मिलते हैं. तो लास्ट टाइम भी हम मिले थे. दिस टाइम वी आर कमिंग हियर विथ आवर एक्सपर्ट फैसिलिटेटर प्रकाश. प्रकाश, स्वागत है आपका. और स्वप्निल जोशी, who is our expert entrepreneur, and he runs an initiative called as Eco Regain. So we are here today with an interesting concept of business planning and idea validation. तो हमारे साथ आज Zoom पर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और Facebook पेज पर भी हम आज लाइव है. तो सबसे पहले मैं हमारे जो एंटरप्रेन्योर है स्वप्निल जोशी उनका स्वागत करना चाहता हूँ. और बेसिकली स्वप्निल, वी आर वेरी वेरी कीन टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली is Eco Regain. Swapnil runs a company called as Eco Regain. तो Eco Regain की concept क्या है? You are on mute, Swapnil. Hello to everyone. So Eco Regain is a concept जहाँ पे हम पुराने clothes accept करते हैं और पुराने clothes से ही हम different types of products बनाते हैं. तो usually इसमें क्या होता है कि each year we purchase new clothes, we use it say for hardly 1 year 2 year, लेकिन उसके बाद उसको dispose कैसे करना है ये हमें exactly पता नहीं है. So currently there are two methods in which one is like giving it to NGO or giving it to any needy person. लेकिन ये जब हम NGOs के भी पास इतने सारे क्लोथ्स आते हैं तो वो हर कोई कपड़े यूज कर नहीं सकते. So eventually, when we have done research on it before launching Eco Regain, we have identified that all these clothes are going on landfill, and on landfill it almost takes 40 years to 100 years of time span for decomposition. And when these clothes get decomposed, it produces two gases. One is carbon dioxide and second one is methane. Methane traps heat 28 times more, which is causing global warming. Hence, old clothes are equally responsible for global warming. This research we have done before launching Eco Regain. So I will show you, this is our research report where we have identified if we are going to use 1 kg of old cloth again, it is going to reduce 3.6 kg of CO2 and methane emission. At the same time, it is going to reduce 0.3 kg of fertilizer use, 6,000 liter of water consumption, because crop industry के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है, and then 0.3 kg of pesticide use. So old clothes are equally responsible for global warming. That research we have done, and after doing this research, I have launched Eco Regain initiative, कि जहाँ पे हम लोगों से क्लोथ्स लेते हैं और वो क्लोथ से ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो आई विल शो यू फ्यू प्रोडक्ट्स. दिस इज लाइक पेंसिल पाउच. जो भी बचे हुए डेनिम के क्लोथ है हमने स्टिचिंग करने के बाद उससे ये प्रोडक्ट बनाया है. सेकंड, वी हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ डाई. राइट. ये पुराने जीन्स से हमने बनाई है. देन देयर इज अनदर थिंग लाइक दिस. ये हमने जो बेल्ट लूप सेक्शन होता है, हम जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं, तो उससे ये बैग बनाई है. इंटरेस्टिंग. देन yes, then this is main sling bag कि जो पॉकेट को ही हमने यूज किया है इसमें. राइट. देन अनदर वन इज लाइक ये जो कॉर्नर सेक्शन रहता है हमारे पॉकेट्स का, उससे ये पूरी सैक बनाई हमने. इंटरेस्टिंग. स्वप्निल जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी आइडिया है रीगेन यानी रिसाइकल की. तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, हम बिजनेस प्लानिंग और आइडिया वैलिडेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये आइडिया आपको आया कहाँ से? Yes. तो firstly I will tell about my education background. I have completed engineering, did MBA, और मेरा career actually I have started as a project manager in software company, कि जहाँ पे एक अच्छा जॉब था और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में I have started my career. But after 1 year I realized that something new I have to do. क्योंकि मतलब 9 से 7 तक तो हम काम करते, but the satisfaction is not there. वो मुझे experience आया. After that, I own software company in 2015. I have run for 1.5 years.
but then again the same situation has happened. I was not getting satisfaction, and मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ masses के लिए कुछ कर सकूँ. The I have to identify the problem of कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का वो और उसी प्रॉब्लम को कुछ मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ. तो एक दिन एक्चुअली संडे दिन था. उस दिन एक न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग फैशन इंडस्ट्री के बारे में एक आर्टिकल आया था कि जिसमें ऐसे लिखा था कि फैशन इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग ह्यूज वेस्ट एंड करंटली देयर इज नो एनी प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर इट. तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, तो देन उस टाइम मुझे आई कम टू नो दैट कि पानीपत इन इंडिया, पानीपत इज द रिसाइकलिंग हब, कि जहाँ पे पुराने क्लोथ्स को रिसाइकल किया जाता है. तो 2 महीने बाद मैं खुद पानीपत गया. वहाँ पे मैंने पूरे इंडस्ट्री को समझा कि किस टाइप से वो काम करते हैं. तब मुझे पता चला कि पानीपत में फॉरेन के कंट्रीज सारे क्लोथ्स भेजते हैं पुराने, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इंडियन क्लोथ्स. तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की, उनको पूछा कि हम पुणे से अगर क्लोथ्स आपको भेजेंगे तो आप इनिशियल कुछ प्रोडक्ट्स हमें बना के दे सकते हैं क्या रिसाइकल करके. सो इन दिस वे आई स्टार्टेड दिस. और ये फिर इनिशियली हमारे पास अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट व्हिच आई हैव शोन इट टू यू इज लाइक अपसाइकल प्रोडक्ट्स, कि जहाँ पे बैग्स है, हैंड बैग्स है, स्लिंग बैग है. इन सेकंड कैटेगरी इट इज अ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, कि जहाँ पे हम थ्रेड्स निकाल के उससे कारपेट, शतरंजी, सोफा पट्टी इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दैट प्रोडक्ट्स हमने इनिशियली पुणे में लॉन्च किए 2017 में. लेकिन हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेसिंग किया. हमने पहले सोसाइटीज में कैंपेन किए, कॉर्पोरेट्स में कैंपेन किए. तो पायलट हमने उसको रन किया 2017 से 18 तक, एक साल के लिए. इन 18 वी हैव लॉन्च्ड आवर एज अ ऑफिशियल स्टोर इन पुणे, which was India's first showroom, कि जहाँ पे सिर्फ पुराने क्लोथ से प्रोडक्ट हमने बनाए थे और लोग आके उसको देख सकते थे, परचेस कर सकते थे. Great. तो इस टाइप से एक्चुअली लॉन्च हुआ एंड आई हैव एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री. सुपर. तो प्रकाश, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है. मानो स्वप्निल जी की ये जो आइडिया थी, वो आइडिया स्टेज में थी जब उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा और उन्हें लगा कि मैं इससे बिजनेस कर सकता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कैसा होता है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंड जो होता है, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं और बहुत सारे आइडियाज के बिजनेस बन सकते हैं, ये हमें पता चलता है. लेकिन ये जो आइडिया है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, समझे कैसे? और as you rightly said, the idea उसे finalize or validate, because as an entrepreneur mind, there are lots of things are coming, or these people are studying through various things nowadays. Internet facility in our hand. It's so any about any related product, whether we are interested or if we have a technical knowledge of it. टेक्निकल नॉलेज एक है या हम उसे अच्छा कर सकते हैं. लेट्स से मैं इसे थोड़े एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा. जैसे अभी स्वप्निल जी ने कहा कि इन्हें इनके माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ, वेराज इनका बैकग्राउंड जो था वो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड या इनका एक्सपीरियंस. बट ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई पर्सन वो कुक अच्छा है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग की है, कुछ अच्छा किया, लेकिन उसे पता है यार मेरा कुकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर पाऊंगा या नहीं. इसे इसका आंसर ढूंढना यानी आइडिया वैलिडेशन करना. सो आइडिया वैलिडेशन मीन्स व्हाट, वेदर माय आइडिया इज फिजिबल or whether it is financially viable. See, if there is some kind of a technique in each and every manufacturing or delivering of the service, कुछ ना कुछ technical process होता है. तो वो technical process की viability और ये जो है वो हमें खुद study से करना होगा. But what about financial viability or feasibility of the business? Feasibility and viability means what? So feasibility means we can say in a simple language, examination of the possibility. मतलब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट उसे मैन्युफैक्चरिंग करना है या प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसका एग्जामिन करना है कि whether the product can be manufactured and sell, whether we can deliver the service. Now, what is viability? Viability means the sustainability of the proposed business activity. Whether if I start particular business activity in so and so month, let's say this year, whether it will sustain for next 2-3 years. उसे ऐसा कुछ है या जैसे कि अगर मैं आपको आज बताऊंगा क्या मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट टाइपराइटर जो मशीन है उसे लेकर स्टार्ट करूंगा तो पॉसिबल है, तो नहीं है.
हम उसे देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो कम हो चुका है। तो इसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा बिजनेस या मेरा जो भी प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी है वो सस्टेनेबल होगा या नहीं, इससे चेक करना, फाइनेंशियली चेक करना, इसे फाइनेंशियल वायबिलिटी कहते हैं। So in business planning service, we provide both of this using a project report as well as a business viability report. Yeah. ग्रेट ग्रेट प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। एंड ये आंसर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दोनों बातें हैं। जैसे आपने बोला टाइप राइटिंग पहले यानी ट्रेंडिंग था, फिर बाद में कंप्यूटर्स आ गए, आज सब लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो हाथ में अपने टेक्नोलॉजी आ गई, तो पूरा सिचुएशन बदल गया। सो सम आइडियाज दैट वर रेलेवेंट अर्लियर आर नॉट एनीमोर, तो आइडियाज चेंज करने पड़ेंगे। और जैसे स्वप्निल जी ने बोला कि उनको उनके पास एक आइडिया आई कि रीगेन यानी रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग की, तो अभी बहुत सारे बिजनेसेस, इको फ्रेंडली बिजनेसेस अपसाइकलिंग के बिजनेस में, प्लास्टिक में है। जैसे रीचरखा के बारे में आप जानते हैं, अमिता देशपांडे जी के साथ हमारी बात हुई। स्वप्निल इज इनटू द क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स रिलेटेड रिसाइकलिंग। तो एक क्वेश्चन स्वप्निल जी को इसमें, कि आपने जब शुरू किया तो आपको ऐसा महसूस हुआ क्या कि किसी टाइम में कि ये आइडिया डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं हो पाएगा, और बाद में जब वो पिकअप हुआ, व्हाट वाज दैट पॉइंट व्हेन इट एक्चुअली पिक्ड अप लाइक अ बिजनेस, एंड देन नाउ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, विल हियर अबाउट दैट स्टोरी आल्सो। लेकिन बीच में आपको लगा क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें एक्चुअली मुझे ऐसे ही कुछ आइडिया में जाना था कि वो थोड़ी डिफिकल्ट हो। सो इन माय टर्म्स आई वाज प्लानिंग टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि क्या है कि अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई हैव सिलेक्टेड द आइडिया, मतलब मैंने जब स्टडी किया तो उसमें मुझे पता चला कि आइडिया आप जब भी सिलेक्ट करते तो वो दो टाइप के होने चाहिए। इट शुड बी अ नीड ऑफ एन मार्केट और इट शुड बी अ इनोवेशन। So in my case or in Corrigan case, it is a need of an market also, and I am presented in innovative way. मतलब जो भी है तो थोड़ा इनोवेटिव है। तो वो पहले मैंने चेक किया कि ये दोनों तरीके से उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और डिफिकल्ट तो डेफिनेटली दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुराने क्लोथ से प्रोडक्ट बनाना सिर्फ नहीं है, तो आई हैव टू सेल इट ऑल्सो। तो पहले लोगों की माइंडसेट रहता है कि किसी ने यूज किया है और क्लोथ है तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, और वो मतलब देयर इज अ थॉट प्रोसेस आल्सो अटैच्ड टू इट। तो ये मतलब हमने जब चालू किया, बट मतलब एज अ पॉजिटिव वी हैव रिसीव वेरी गुड रिस्पांस सिंस व्हेन वी हैव स्टार्टेड। तो उसमें कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोगों ने कुछ मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। सो दे हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड। लोग आते थे, वो सपोर्ट करते थे हमें, हमें कुछ मतलब उनके इनपुट्स भी देते थे। तो इन माय केस एटलीस्ट दिस पॉइंट आई हैव नॉट रीच कि अरे ये क्या मैंने चालू किया है। डेफिनेटली द स्ट्रगलिंग वाज लाइक कि क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो थोड़ा हमें इनिशियली थोड़ा उसमें डिफिकल्टी हुई। क्योंकि पहले से मार्केट में बैग्स है, लेकिन हमारे पुराने क्लोथ से बैग्स है, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो डिजाइनिंग वाइज भी उतना अच्छा दिखना चाहिए, तो क्वालिटी शुड बी देयर। तो ये सारी चीजें, और वो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, हु इज अवर कस्टमर, तो ये आइडेंटिफाई करने में इनिशियली थोड़ा मैं बोल सकता हूँ स्ट्रगलिंग पीरियड था। बट नाउ डेफिनेटली पीपल, जो भी कस्टमर है उन्होंने ही हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया, एंड दे हैव मोटिवेटेड अस टू डू फर्दर थिंग्स। तो दिस इज अबाउट माय एक्सपीरियंस। ग्रेट। स्वप्निल, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या होता है बिजनेस में, जैसे आपने इनोवेशन यस, और नॉवेल्टी के बारे में बोला, और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना पड़ता है, कुछ थॉट करेक्ट, प्रोसेस बिल्ड करनी पड़ती है, अपना मार्केट डिजाइन करना पड़ता है, और लोगों को करेक्ट, उसके बारे में उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बताना पड़ता करेक्ट, है। उसमें अवेयरनेस यस, का यस, एलिमेंट है। यस, जैसे अपसाइकलिंग में बहुत सारा अवेयरनेस का एलिमेंट है। करेक्ट, उसके साथ में मार्केट में कंपटीशन जब होती है, यानी आपके जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, प्राइसिंग करेक्ट, और कंपटीशन, ये दो बातें हैं कि आप जैसे प्रोडक्ट और होना, और उसके साथ में आपके कॉस्ट के साथ दूसरे कॉस्ट कंपैरिजन होना। ये करेक्ट, बिजनेस में बहुत बार एक्सपीरियंस होता है। और करेक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट लेस इनोवेटिव और ज्यादा मेन स्ट्रीम हो जाता है, वैसे कंपटीशन बढ़ती जाती है। तो प्रकाश, आपको क्वेश्चन है कि मार्केट स्टडी हम जब करते हैं, तो बिजनेस प्लानिंग का जो आपने बोला, उसमें क्या क्या हम करते हैं जिससे ये मार्केट स्टडी अच्छा हो सकता है?
प्रेडिक्शन अबाउट फाइनेंसेस अच्छा हो सकता है? यस, सो आनंद जी देखिए, जैसे अगर बिजनेस प्लानिंग ये सर्विस में हम देखते हैं, तो बेसिकली वी एक्चुअली फोकस ऑन थ्री मेन इम्पोर्टेंट थिंग, जिससे आगे चल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने में हमें सहायता होती है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर आइडिया। अब वो आइडिया मीन्स व्हाट, कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या क्या चीजें या क्या क्या एस्पेक्ट्स पे डिपेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ पर आप करने वाले हो। उसके बाद उसके रिलेटेड कोई ट्रेनिंग नेसेसरी एक्सपीरियंस आपका है या नहीं। सेकेंड थिंग इज, आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हो उसे लीगली आप कैसे एंटिटी बनाना चाहते हो। देन देन आपको इसके लिए कोई फैमिली फ्रेंड्स इनसे कोई सपोर्ट मिल रहा है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, बट आपको एक जो सपोर्ट की जरूरत होती है वो मिलने वाला है या नहीं। तो ये सारी चीजें उसमें एक एस्पेक्ट के जरिए देखी जाती है। अब इसके अलावा क्या देख सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो भी आइडिया है या आपका जो भी प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी है, उसके एट प्रेजेंट आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कौन है, उनके लाइक्स क्या है, या वी कैन से उनकी नीड क्या है, और आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो उस नीड को कैसे केटर कर सकता है। उन्हें जो भी चाहिए तो वो आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट काबिल है उनकी पर्टिकुलर नीड जो भी है वो हमें अंडरस्टैंड करने देते। सेकेंड थिंग इज अ कंपटीशन, जैसे अभी स्वप्निल जी ने कहा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, लेकिन फिर भी उनके लिए कॉम्पिटिटर्स है। कौन है? तो वो लोग जो बैग बनाते हैं, वो लोग जो पेंसिल बॉक्सेस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, इनका रिसाइकल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी मार्केट में काफी सारे बैग बनाने वाले लोग हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं। तो वो जो है वो इनके कॉम्पिटिटर्स है। वो कोई ऑनलाइन हो सकता है, कुछ सालों से कर रहा है, उसका मार्केट में गुडविल अच्छा है, उनका बहुत सालों से बिजनेस चल रहा है, इसकी वजह से उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने में, या उनका जो भी पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटर्स के लिए अगर कुछ उनको देखना है तो वो भी मतलब उनके पास उतना फंड्स अवेलेबल होता है कि न्यू कॉम्पिटिटर को वो थोड़ा सा थ्रेट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो इसी के साथ साथ हमें हमारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो वो टेम्पलेटाइज होता है, जो टेम्पलेट्स हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ने रेडी किए हैं वो टेम्पलेट्स हम कैंडिडेट्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो अ, उस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आए। ये सारी इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड और उनका जो भी पर्टिकुलर नॉलेज है उसके बेसिस पर होती है। सो ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर। सेकंड, इट्स ऑल अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। एंड थर्ड इज योर प्रोडक्ट या सर्विस, उसके क्या प्राइसेस है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। ये आपको एक टेम्पलेटाइज दी जाती है, उसमें हमने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप जाके पूछ सकते हो या उसका आंसर्स लेके आ सकते हो, ताकि फिर उसे हम आगे फॉर्मेट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वायबिलिटी रिपोर्ट में बना सकेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं ये प्रकाश आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ये होता है कि जब हमें कुछ बातें मालूम होती नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये होता है कि या तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मुझे मालूम नहीं कि इसमें आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो ये जो एम्बिग्विटी है वो एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करने में कंट्रीब्यूट करती है। और आप जो बोल रहे हैं बिजनेस प्लानिंग करने से, ये डिटेल्स पुट डाउन करने से हमें कागज पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि हम कितने पानी में है, क्या कर सकते हैं। कितने पानी में है बोलने का मतलब ये है कि हम कितने स्ट्रांग भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वीक है, लेकिन उतना होता नहीं है। हम स्ट्रांग होते भी है, लेकिन हमें मालूम होता नहीं कि हम स्ट्रांग कितने हैं। तो इट बिकम्स मोर रियल, इट बिकम्स मोर प्रेडिक्टेबल, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। स्वप्निल जी, आपको क्वेश्चन है कि आपको ऐसा कब एक्सपीरियंस आया कि आपका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ गया, और आपको पता चला कि हाँ, अभी ये बिजनेस मैं करने वाला हूँ और इसमें और इन्वेस्टमेंट करूंगा और आगे बढ़ के आगे जाऊंगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको कब आया? एक्चुअली इसमें मतलब जो हमारी बेसिक एक इम्पॉर्टेंट थॉट ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जैसे भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये अपसाइकल्ड है या क्या है।
तो ये हमारा डिजाइनिंग स्किल होना चाहिए उसमें। तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि हमारे मतलब मेरे बहन की एक लड़की स्कूल में है, तो उसके एक फ्रेंड ने एक पाउच लिया था, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स में हमारे प्रोडक्ट्स थे। तो वो उसने उसको दिखाया कि अरे आई हैव नाउ कंट्रीब्यूटेड इन एनवायरनमेंट सेविंग और आई एम यूजिंग दिस अपसाइक्ल्ड प्रोडक्ट पाउच। तो दैट इटसेल्फ गिव मी सेटिस्फैक्शन कि लोगों को ये अभी कंट्रीब्यूट करने के लिए दे वांट, मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके लिए। और ये वो मतलब एक प्रेस्टिजियस या एक फीलिंग जो रहती है, प्राउड फीलिंग से वो बता रहे कि आई एम यूजिंग दिस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये आई थिंक दैट इज द पॉइंट वेयर आई फील कॉन्फिडेंट कि नाउ व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग, दीज आर लाइक वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट। फिर उसके बाद जैसे भी हमने कुछ एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया या फिर बहुत सारे, हेलो, यस, तो बहुत सारे एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया, तो हर टाइम हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि लोगों ने बोला कि दिस इज वेरी यूनिक प्रोडक्ट, दीज आर लुकिंग गुड प्रोडक्ट्स। और ये एक डिजाइनिंग वाइज भी उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारे ये पास मतलब वी हैव अवर ओन वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर कि जहाँ पे हमने नीडी वुमेन्स को ही ट्रेनिंग दिया है और वही लेडीज ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये डिजाइनिंग भी है तो वही लेडीज करके, तो हमारे पास कोई ऐसे एक्सटर्नल डिजाइनर नहीं है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट लेता है तो फाइनली दे आर अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स और देयर डिजाइनिंग स्किल। मतलब वो नीडी वुमन से इसके, सो आई वांट टू हाईलाइट दीज आर क्रिएटिव वुमन्स रादर देन कॉलिंग देम एज अ नीडी वुमन। तो ये सारी चीजें जब होती है तब आई फील कॉन्फिडेंट कि या नाउ हैव रीच टू दैट लेवल कि नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट मोर इन टू दिस और ये बहुत आगे तक लेके जाना है। सो दैट आई थिंक बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। फैबुलस। और इको रीगेन, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो नाम है ना, मैं सब बार बोलता हूँ कि ब्रांड आइडेंटिटी, आपके करेक्ट, बिजनेस की आइडेंटिटी यस, बहुत ही जरूरी है कि आप उसमें जो द इंटेंट बिहाइंड इट ऑलवेज कम्स आउट ऑफ द नेम ऑल्सो। सो करेक्ट, अपसाइक्लिंग का जो प्रोसेस है, हमने देखा है पुणे में और बहुत सारी जगह अभी इको फ्रेंडली बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? करेक्ट, क्योंकि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में अभी बहुत सारा लोड एनवायरनमेंट पे आ रहा है, वो पोल्यूशन है। करेक्ट, आप केमिकल करेक्ट, बेस्ड बातें यूज करते हैं तो उससे यस, वाटर, एयर, सब पोल्यूशन बढ़ता है। तो वो कैसे कम किया जाए? उसके साथ में हम जो बातें यूज करते हैं उसका जो एबंडेंस होता है वो कैसे हम कम करें? तो बिकमिंग मोर एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कैचिंग अप एज अ कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी यानी ये जो कॉन्सेप्ट इस टाइम में जरूरी है ध्यान में देना, सोचना। उससे मुझे लगता है कि आपके बिजनेस को बहुत सारा पिकअप होगा और रिकग्निशन उसको लोग दे पाएंगे। करेक्ट। प्रकाश, एक क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे बिजनेसेस का प्लानिंग किया है, तो आपको ऐसे कौन से छोटी दो चार बातें दिखाई देती है जो आपको बार बार सामने आती है कि जब बिजनेस प्लानिंग और आइडिया वैलिडेशन करते हैं, तो ये तीन चार बातें रहती है जो कॉमन है कि जिसके बारे में सोचा नहीं रहता है बिजनेसेस ने? यस आनंद जी, मैं इसका आंसर थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा। हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर अप्रोच हुए थे और वो लेडी थे। उनका एक छोटा सा घर से मेस वो चलाते थे, कुछ टिफिन्स वगैरह लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। एज ए लेडी घर के सारे काम करके वो करते थे। उनके जो मिस्टर थे वो एक जगह जॉब करते थे, छोटे से ही था। ज्यादा एजुकेटेड फैमिली नहीं थी, मतलब मैक्स लेडी जो थे उनका एजुकेशन भी मैक्सिमम 9th या 10th पास उतना ही था। फिर भी उनका जो भी पर्टिकुलर काम था वो खुद अकेले सारा चीजें करते थे। मतलब जैसे हम देखते हैं कि घर में तो हाउसवाइफ या हमारी मदर, वो जिस तरह से सारे काम करते हैं, लेकिन उनको कोई अगर बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो सेम ऐसा थोड़ा सा उनके घर में था। लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर एक्सपांशन के बारे में और इसके बारे में जब हमारे साथ अप्रोच हुए थे, तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करते वक्त, मतलब ये बिजनेस प्लानिंग से भी पहले की थोड़ी सी स्टेज थी, तो उस वक्त मतलब उनको एक्सपांशन करना था, तो उसीलिए उन्होंने अप्रोच किया। लेकिन जब एक्चुअली उनके सारे जो भी थॉट्स थे या वो जो कर रहे थे वो हमने पेपर पे लिखा और वो सारी चीजें उनको जब बताए, तो उनको हमने मतलब उनका कितना प्रॉफिट होता है, वो कितने पैसे कमाते हैं, ये सब जब उनके पास में एक्चुअली ऑन पेपर दिखाई दिया, तो उनके हस्बैंड भी आए थे उस दिन।
तो उनके हस्बैंड ने हमसे डायरेक्टली पूछा कि यार ये सच में इतना होता है, जो भी पर्टिकुलर पेमेंट्स आ रहे थे। तो हमने कहा ये आपने दी हुई इंफॉर्मेशन है, इसी से पूरा आ रहा है। सो दैट कि जो भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो यू आर नॉट, मतलब आप उसे अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे या उसे आप लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उनके फैमिली में चेंज ऐसा हुआ कुछ दिनों बाद, हस्बैंड को इतना वो ये लगा कि मैं किसी और के पास काम कर रहा हूँ, वेयरएज अगर यही हेल्प मैं एक्सटेंड करूँ अपने वाइफ के साथ तो उनको बिजनेस में ज्यादा पैसे मिलेंगे, बिकॉज सारी चीजें उनको करनी पड़ती थी। सो इट्स लाइक द सपोर्ट व्हाट आई सेड, द सेम थिंग कि बिजनेस प्लानिंग या एक्सपेंशन के लिए भी अगर कुछ प्लान करते हो तो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्सेस है, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, या आपको आगे चल के उसे जो एक्सटेंशन में आपको पैसे मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह जो करना है, तो वो भी आपको देखना होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जो आपने कहा कि हम वीक है, हमें कुछ आता नहीं है, ऐसे ही लगता है यार मेरा बिजनेस इतना ही होने वाला है, इससे आगे जाने वाला है, अनलेस एंड अनटिल इफ वी पुट इट ऑन द पेपर। और वो पेपर पे पुटअप करने का एक तरीका होता है, तो उसीलिए हमने वो एक्सपर्ट से टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, ताकि लोग हमें पूछते थे अरे हम मार्केट में जाके क्या पूछूं, मैं लोगों से कैसे पूछूं, कॉम्पिटिटर को कौन मुझे बताएगा कि यहाँ है। सो इसी के लिए हमने वो टेम्पलेट बनाए। और टेम्पलेट के वक्त हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आप जाइए पूछिए और लोगों को ये बताइए कि हम यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस का प्लेस कोई और है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह पर बैठ के करना है। सो अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हो लोगों को। इसी तरह से वो टेम्पलेट्स डिजाइन किए और लोगों को दिए गए हैं, ताकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनको इंफॉर्मेशन लेना आसानी हो। सेकेंड थिंग, जो बातें वो जान नहीं पाते रिगार्डिंग द वायबिलिटी कि आगे चल के मेरा बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, तो वो भी उनको हम बता सकते हैं, पेन एंड पेपर और पेपर पर लिख के बता सकते हैं। यहाँ तक कि वायबिलिटी रिपोर्ट हम जो बनाते हैं, तो हमने कई सारे बिजनेसेस को निगेटिव वायबिलिटी भी बता दी है और ऑन पेपर दिया है कि आपका ये पर्टिकुलर बिजनेस है एट प्रेजेंट ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस वो वायबल नहीं हो सकता। लेकिन उसे वायबल करना है तो आपको क्या क्या करना होगा, ये गाइडलाइंस भी एक्सपर्ट के थ्रू दी जाती है और वो ऑन पेपर होते हैं, जिसे वो आगे चल के इम्प्लीमेंट करके बढ़ा सकते हैं। सो वायबिलिटी, बिजनेस वायबिलिटी ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं आपने जस्ट स्टार्ट करते वक्त आइडिया वैलिडेशन कर लिया, 1 साल हो गया 2 साल हो गए बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर एक्सपांशन करना है देन अगेन यू हैव टू रीथिंक कि मैं कितना एक्सपांड कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस अगेन। सो इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। सो यू हैव टू डू इट लाइक कुछ टाइम पीरियड के बाद ये करना ही पड़ेगा फिर से। बिल्कुल। प्रकाश जी, आप ये जो बोल रहे हैं मुझे रेलेवेंट इसलिए लग रहा है कि मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ जिनके बिजनेस है उनसे बात कर रहा था। तो अभी ऐसा हुआ है कि पैंडेमिक के बाद में कस्टमर साइकी चेंज हो गई है। जो बायर्स है, कंज्यूमर्स है, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। पहले वो जितनी बार होटल जाते थे, शायद मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, कितना जाएंगे। पहले जितनी बार उन मॉल में जाते थे, अभी मालूम नहीं कितना जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन उनका शॉपिंग बढ़ रहा है, ऑनलाइन पे वो सब आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड्स है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट फ्रेंड्स हैं जो योगा सिखाते हैं, डॉक्टर्स है, खुद की कंसल्टेंसी है। उनके क्लिनिक में या योगा स्कूल्स में अभी कोई आता नहीं है। तो उनके जो ट्रेंड्स है वो सब ऑनलाइन पे आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होते ही आपको उसको अडाप्ट करने के लिए आपको फिर से प्लान बनाना पड़ेगा, फिर से वायबिलिटी चेक करना पड़ेगा, और आज की तारीख में उसका वायबिलिटी रिपोर्ट बनाना जरूरी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंटिन्यूअस आपने बोला, वो एक्सपीरियंस बहुत ही आता है कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन कॉन्स्टेंटली लेने से इसका वायबिलिटी कंटिन्यूसली चेक हो पाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आया, तुषार जी ने पूछा है कि कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट ऑनलाइन स्टार्टअप कॉस्ट। ऑल राइट, तो तुषार जी, इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको बिजनेस ऑनलाइन लेना है, मतलब उसके बहुत अलग अलग मीनिंग है। तो अगर कुछ ऐसे एप्स या कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन लीड शुरू कर पाते हैं, या तो मार्केटिंग में भी आप बिजनेस आपका ऑनलाइन ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस टाइप कौन सा है, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, इसका सोचकर
आपका ऑनलाइन बिजनेस मतलब क्या, ये डिफाइन करना पड़ता है, और उसके आगे फिर हम उसका प्लान या बाकी कुछ बातें वो बता सकते हैं। स्वप्निल जी, एक क्वेश्चन है, आप भी इस ट्रांजिशन से गए हैं, लोग एग्जीबिशंस को अभी आते नहीं है, और हमने देखा है कि बहुत सारे एग्जीबिशंस कैंसिल हो गए। तो करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पे या तो यस। ई स्टोर्स है अभी, डेजल का यस। हमारे भी एक ई स्टोर करके ऐप है, करेक्ट। वो भी अभी यस। लोग यूज कर रहे हैं। तो स्वप्निल जी, आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस क्या है? यस। तो इसमें आई थिंक, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑनलाइन बैकग्राउंड से आता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब आई वाज डूइंग इनटू ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, और मेरी खुद की कंपनी भी उसी में काम करती थी। तो मैंने एक्चुअली मतलब ये मेरी थॉट है कि इनिशियली जब भी कोई बिजनेस चालू होता है तो उसमें थोड़ा ग्राउंड लेवल, थोड़ा ज़्यादा कस्टमर बेस होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या सेटिस्फेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले जब हमने चालू किया था 2018 से 19 तक, तो हमारा बहुत सारे लोगों को पता चला थ्रू सोशल मीडिया, और बहुत सारे मीडियाज ने, या मतलब नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर पेपर मीडिया ने भी हमें बहुत सारा सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को। बट बिकॉज ऑफ दैट, जब भी ये मतलब कोरोना या पैंडेमिक सिचुएशन चालू हुई, तो रिपीट कस्टमर बहुत सारे उन्होंने हमें ऑनलाइन पे अप्रोच किया कि आई वांट टू बाय दिस बैग, ये बैग है, ये डिजाइन है क्या। तो आई थिंक पहले के जो 2 साल थे कि जहाँ पे हमने ये जो ग्राउंड वर्क किया था, तो उसका बेनिफिट ये जो सिचुएशन आई अभी, तो मतलब जो भी ऑर्डर्स आते हैं तो वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वो पहले 2 साल इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे हमारा थोड़ा बेस बना था। और अभी जो है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट, दीज आर द वेरी, मतलब उससे तो पूरे हम इंडिया में स्प्रेड होते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स अभी बेंगलोर में भी हम शिप करते हैं। परसों तो अगरतला से कॉल आया था हमें टू आस्किंग दिस इनिशिएटिव कि हमें क्लोथ्स कैसे कर सकते हैं और हमें प्रोडक्ट लेने हैं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अस, लेकिन उसमें एक है कि आपका बेस पहले थोड़ा बहुत तो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। दैट इज माय थॉट इन दिस, कि जो भी कुछ है तो पहले एटलीस्ट 1 साल तो लोगों से बात करके या लोगों तक आपने पहुंचाना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स को। बिल्कुल, तो स्वप्निल, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है आपका फीट ऑन द ग्राउंड, करेक्ट। एक्चुअल यस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका बिजनेस यस। स्ट्रेटेजी, और ये पूरा इकट्ठा करके ऑनलाइन पे उसका इंप्रेशन और ब्रांड क्रिएशन, ये करेक्ट। सब यस। एक साथ में काम करता है। एक मैं क्वेश्चन लेने करेक्ट। वाला हूँ, हाउ डू यू फाइंड इन्वेस्टर्स फॉर वंस बिजनेस, की आइडिया, इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, हु कैन इन्वेस्ट एंड whom we can convey our business plan और pitch? मैं थोड़ा सा इसका आंसर दे देता हूँ कि अगर आपको बिजनेस प्लान में जो बेसिक बातें हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, उसका डेफिनेशन, आपके रिसोर्सेस क्या है, वो रिसोर्सेस का डेफिनेशन उसमें होना, और उसी के साथ में आपका कस्टमर रीच कितना है, और उसके साथ में आपको कैश फ्लो कैसा है। तो ये 2-3 बातें होती है कि कोई भी बिजनेस वायबिलिटी टेस्ट करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना, कैसे करना अच्छा रहेगा। तो इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, ये समझ के वो पिच बनाना, और वो हर एक सेक्टर में उसका जो यानी उसका फ्लेवर है वो थोड़ा अलग अलग रहता है, उसका जो ट्रेंड है वो अलग अलग रहता है, और बेसिक बिजनेस प्लान इन प्लेस होना बहुत ही जरूरी है। वो बिजनेस आप स्टेबल करते हुए कभी कभी प्लानिंग स्टेज से ही इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। अभी बहुत सारे बिजनेसेस है जो टेक्नोलॉजी के साथ में करते हुए ट्रेंडिंग है, और बहुत सारे पिचेस अभी टेक इंडस्ट्री, एड्यू टेक, हेल्थ टेक, कहीं पे भी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन उसमें आज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स तक रीच करना और बिजनेस वायबल बनाने में वो बहुत ही अभी जरूरी हो गया। प्रकाश, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस? यस आनंद, आपने जो कहा वो काफी यहाँ हद तक ठीक है, बट रिगार्डिंग द बिजनेस प्लानिंग सर्विस ऑफ दयासरा फाउंडेशन, मैं यहाँ व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, इट्स रिलेटेड विद द बिजनेस लोन ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो हमारा ये बिजनेस प्लानिंग भी जब हम करते हैं, सो वी कंसिडर द बिजनेस प्लानिंग or whatever the proposal is there na, according to the बिजनेस लोन, मीन्स जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो लोन दिया जाता है,
उसे कंसिडर करके ही हम ये बिजनेस प्लान रेडी करते हैं। बिल्कुल। और प्रकाश जी ने ये जो बोला, ये जो इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी फंडिंग, ये जो बातें हैं, ये थोड़े से अलग तरीके से सोचना पड़ता है। शायद दियासरा के इकोसिस्टम में ये सब बातें आपको मिलेंगे ही, ऐसे नहीं, लेकिन बिजनेस प्लानिंग और आइडिया वैलिडेशन जो स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे तो हेल्प बिल्कुल मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन है, वो हम ले लेंगे। Started one food startup and found that getting in food distribution is difficult as regular food distributors don't entertain you. So will online selling help on this? मेरा आंसर है yes, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि खुद का कस्टमर बेस क्रिएट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी फूड सप्लाई चेन में जो लोग हैं या एग्जिस्टिंग ब्रांड का भी सेल करते हैं, तो भी जो एजेंसी होती है या जो बिजनेस ओनर होता है, वो खुद के कस्टमर्स बिल्ड करना, ये तो बात दोनों जगह है। इसलिए आपका जब आपका खुद का फूड का बिजनेस है, तो वहाँ भी खुद के कस्टमर्स आपको बिल्ड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए आपको जो एफर्ट्स है वो ऑनलाइन पर आप ले सकते हैं। उसमें ई स्टोर का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको शायद यूजफुल रहेगा, कि आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका एनलिस्टिंग और उसका कैटलॉग बना के आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस भी आपको यूजफुल है, जहाँ पे आप लॉग कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये डिजिटल मीडिया भी है, और उसके लिए भी दियासरा आपको सपोर्ट करेगा। आप कॉल कर सकते हैं और आपको हेल्प मिल सकती है। प्रकाश, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? No, Anand, I think you have covered each and everything. All right. So, Swapnil, one last question to you, because we are almost towards the end of the session. Yes. We have many entrepreneurs present here and many watching on FB also. Yes. So, what will be your message to all the entrepreneurs? कि आपका अगर बिजनेस प्लान सक्सेसफुल करना है, तो आपके एक्सपीरियंस में आप क्या एक इम्पोर्टेंट टिप देंगे जाते जाते? I think the important tip is like the patience is important, क्योंकि आप जो भी बिजनेस सोचते हो, तो उसमें पहले है कि मुझे बिजनेस करना, ये आपने खुद ने डिसाइड करना चाहिए। एंड आप कहीं पे भी एक मतलब 2 साल तो आप ऐसा सोचो कि मुझे जॉब करना ही नहीं है, इफ आई गेट इनटू बिजनेस तो बिजनेस ही मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो ये थॉट से ही आप बिजनेस चालू करो। उसमें आप अगर ऐसे करो कि मैं 1 साल देखता हूँ चलेगा तो, या फिर देन आई विल शिफ्ट इनटू जॉब अगेन, तो वो होगा नहीं उससे। एंड सेकंड थिंग, नेक्स्ट डिकेड जो है 10 साल है जो आगे, तो डेफिनेटली जॉब मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या बिजनेस या खुद का कुछ वेंचर चालू करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम दैट यू कैन थिंक अबाउट द बिजनेस, क्योंकि जहाँ पे आगे जाके ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली जॉब मिलेगा ही। तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप डेफिनेटली यू कैन थिंक टू स्टार्ट इट राइट नाउ। आप वैलिडेट तो उसको कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट थिंग। और पहले डायरेक्टली जाके आप छोटे छोटे स्टेज से चालू करो। मतलब कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो यू कैन आस्क योर फैमिली, योर फ्रेंड्स की वेदर डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, आपको कैसे लग रहा है। तो 1 साल के बाद आप सोचिए कि ओके अभी नाउ आई गेट इनटू बिजनेस। तो आप पहले ही दिन से ऐसे मत सोचो कि मैं कल कुछ हुआ नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। तो ये निगेटिव थॉट जो रहती है कि 1 साल के बाद मैं बंद कर दूंगा, चला नहीं तो क्या करूँगा, तो आई थिंक दैट यू शुड थिंक कि ये चलेगा पॉजिटिवली। और पेशेंस इसमें रहेगा, बिकॉज अभी के आई थिंक द करंट सिनेरियो जो भी स्टार्टअप का एक ये है कि हर एक मतलब एक वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन हम पिछले कुछ बिजनेसेस देखें तो 10-10 साल पहले लगते थे। हर एक बिजनेस की एक साइकिल रहती है, लेकिन हमने वो अभी क्या किया कि हमने 1 साल चला तो चला, नहीं तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। बट दिस इज नॉट द थिंग, क्योंकि हर एक बिजनेस की एक साइकिल रहती है। कम से कम 3 साल के बाद यू कम टू नो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है या मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो वो 3 साल का पेशेंस आप पहले से खुद के पास रखो, तभी आप आके जाके आई थिंक एवरी बिजनेस के लिए एक दिन आता है उनका कि दे कैन एक्सपांड देयर सेल्फ। तो वो पेशेंस हर के पास रखना चाहिए इफ दे आर गेटिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। From my side, this is Great, great. Thank you so much, Swapnil yes. from Thank you. EcoRegain, and Yes, thank Prakash, you. our Yes. expert facilitator from Diasara Foundation. Thanks a lot, everyone, joining us on Zoom as well as FB Live. We will meet again on next Thursday. हम अगली वीक में बोलने वाले हैं
वो FSSAI लाइसेंस के बारे में। तो इसका यूज बहुत सारे फूड बिजनेसेस को होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 5 PM। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।